welcome back to English Master. Today we are going to learn a new lesson of class 12th. The name of the chapter is On the Face of It, which is written by Susan Hill. So before we begin, let me tell you something about the author. Author Susan Hill is an English author of fiction and non-fiction, both the types. Her novels are very famous. In them, there is One Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of Castle. And she even received many awards for her contribution in literature. So we will begin with her writing the name of the chapter, On the Face of It. So before you read, let me tell you this story is about a teenage boy whose name is Derry, who has a burnt face, and Mr. Lamb, who is a disabled old man with an artificial leg which is made up of tin. Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who hate him because of his ugly face, and Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, which he has the past, which he had a very bad past, he wants him to leave it behind. तो जब हम स्टोरी में पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ दो कैरेक्टर हैं, एक डेरी है और एक मिस्टर लैम्ब है. तो डेरी जो है उसका फेस आधा जला हुआ है, इसीलिए चैप्टर का नाम ऑन द फेस ऑफ इट है. और हम देखते हैं डेरी जो कि उसकी एक टांग नहीं है और वो टिन की लगी हुई है. तो डेरी एक बहादुर इंसान है, जबकि मिस्टर लैम्ब एक बहादुर इंसान है, जबकि डेरी बहुत सहमा हुआ बच्चा है और उसको लोग उसकी तरफ जब पिटी से देखते हैं वो उसको पसंद नहीं करता और वो उस सब चीज़ों से फेस करने से बचता है और छिपता फिरता है. और जब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में वो छिपते छिपाते मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंच जाता है, जबकि लैम्ब समझते हैं कि वो कोई एप्पल चुराने वाला बच्चा है. तो हम पढ़ते हैं सीन 1. Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand. And Derry is startled. Startled का मतलब होता है चौंक जाना. तो जो स्टोरी शुरू होती है, जो सीन 1 है, तो ये कहाँ का है? मिस्टर लैम्ब का गार्डन है. और इसमें क्या है? हम देखते हैं कि देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड द ट्री लीव्स दे आर रस्लिंग एंड देयर इज footsteps. How they can be heard because he is walking very slowly on the long grass, so that makes sounds. And he pauses there and walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो जैसे ही हम देखते हैं सीन 1 में मिस्टर लैम्ब का गार्डन होता है, जिसमें डेरी चुपचाप अपने धीरे धीरे कदमों से अंदर घुसता है, लेकिन पत्तियों पे जब वो चलता है तो सूखी पत्तियां एक साउंड करती हैं जो रसलिंग कहलाता है, सरसराहट की आवाज़. फिर वहाँ पे वो बहुत सारी बुशेस होती हैं. तब वो जब वहाँ जाता है तो वो किसे देखकर? डेरी को देखकर मिस्टर लैम्ब जो होते हैं अपने बगीचे में चौंक जाते हैं. तो ये उनका कॉन्वर्सेशन है. मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स. डेरी व्हाट? हु इज दैट? हु इज देयर? मिस्टर लैम्ब इज माई नेम. माइंड द एप्पल्स. क्रैब मीन्स खराब, सड़े हुए. एप्पल्स दोज आर. विंड फॉल इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. अब डेरी अचानक से ये कॉन्वर्सेशन सुन के क्या करता है? हकला जाता है और फिर वो क्या बोलता है उससे? कहता है आई देयर. उसको वर्ड नहीं आ रहे यहाँ मुंह में. आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर. तो वो सफाइयाँ देने लग जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है. तो यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब वॉर्न्स हिम अबाउट द क्रैब एप्पल्स दैट यूजुअली फेल in the long grass for the tree above. Derry was shocked on hearing this voice. He asked as to who it was, and Mr. Lamb introduced himself as also said that small sour apples known as crab apples had fallen on the ground. If Derry wouldn't be careful while walking through the grass, he could trip over them and get hurt. So this is what we learn. तो हमने देखा कि यहाँ पर उन दोनों के बीच बातचीत होती है और जब वो उसे कहता है कि उन एप्पल्स को मत लेना जो कि गिर चुके हैं और ख़राब हैं,
तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है डेरी के लिए, इसलिए वो हकलाने लग जाता है और उससे पूछता है कि वहाँ कौन है। वहाँ लैम्ब अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और उससे कहते हैं कि वो खराब एप्पल्स को ना खाए या उस पर फिसल कर गिर ना जाए जिससे वो हर्ट हो जाए। दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। जब वो घबरा जाता है तो वो उसको कंसोल करता है, उससे कहता है कि डरने की बात नहीं है, ही कैन सी हिम एंड ही कैन गेट रिलैक्स्ड। डेरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो वो उसको कहता है कि वो क्या समझा था इसको, उसे लगा था कि ये घर कैसा है, एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है और यहाँ कोई नहीं रहता। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो इट इज, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट्स एम्प्टी until I go back inside. In the meantime I am out here and likely to stop a day like this। तो वो उससे कहता है कि मैं जब तक बाहर हूँ यानी अपने बगीचे में हूँ तब तक तो मेरा घर अंदर खाली ही पड़ा है, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर में कोई है? अभी भी कोई नहीं है जब तक मैं घर के अंदर ना जाऊं। तो उससे हमें पता लगता है कि मिस्टर लैम्ब अपने घर में अकेले रहते हैं। वो कहते हैं कि आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और ये भी दिन वैसे ही दिनों की तरह है, एक सुंदर दिन, एक ऐसा दिन जो बहुत सुंदर है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और ये दिन इतना प्यारा है कि हम घर में ना बैठें बल्कि बाहर निकल आए। तो आफ्टर ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ he also said that these apples are not good, and afterwards he said that he didn't know that someone was present in the garden. He thought it to be empty and even the house seemed empty to him. Mr. Lamb tried to comfort him by saying that the house was empty as he was out in the garden. He also asked him not to get scared. He wanted to leave the place. Now next you see Derry panic, I have to go. अब देखो हम देखते हैं कि वो घबरा जाता है और वो कहता है उसे जाना है क्योंकि वो घर छोड़कर जाना चाहता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, दैट गेट इज ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह से डरता हुआ मेरे घर में आए, मैं चाहता हूँ कि कोई भी आए बिना डरे आए, या मेरा गेट हमेशा ओपन रहता है। सो दिस शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिस्टर लैम्ब दैट ही इज अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट हार्ट एंड ही लाइक्स वेलकमिंग पीपल इन हिज हाउस। तो वो उसको कहता है सब दरवाजे से आते हैं, किसी को मना नहीं है, तुम ही पहले बच्चे हो जो मेरे घर में गार्डन वॉल कूद कर अंदर आए हो। तो यहाँ हम इंटेंशन जानते हैं कि डेरी जो है उसका इंटेंशन यहाँ आकर एप्पल्स खाना नहीं बल्कि अपने आप को कुछ देर अकेला रखना है। तो इसलिए वो दीवार कूद कर अंदर आता है क्योंकि उसको लगता है कि इस घर में कोई नहीं रहता। डेरी अब वो एंग्री हो जाता है, कहता है यू वर वॉचिंग मी। तो कहता है मिस्टर लैम्ब कहता है आई सॉ यू, कहता है यस मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज ओपन, तुम अंदर आ सकते हो ऐसे ही। ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, कहता है मैं सबका वेलकम करता हूँ। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, कहता है मेरा ये बगीचा है और मैं इसमें बैठना पसंद करता हूँ। डेरी कहता है आई डोंट कम हियर टू स्टील एनीथिंग, कहता है मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो नो, द यंग लैड्स स्टील, लैड्स मीन्स बॉयज, चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, कहता है और तुम उतने यंग अभी नहीं हो जो यहाँ तुम मेरे एप्पल्स चुराने आओ। डेरी कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं सिर्फ इस बगीचे में आना चाहता था। वो अभी भी अपनी इंटेंशन नहीं बता पाता है कि वो क्यों यहाँ बैठना चाहता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो कहता है अच्छा हुआ तुम आए, चलो हम दोनों साथ बैठते हैं। डेरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, तो कहता है वो कहता है उसको वही कैच कर लेता है, कहता है यस तुम एक बॉय हो जिसकी उम्र कितनी होगी, लगभग 13 या उससे थोड़ी ऊपर या नीचे। डेरी कहता है 14 ईयर्स का है वो, और उसको कहता है बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, और वो उसको ये बताता हुआ कि उसकी उम्र 14 ईयर्स की है, वो वहाँ से कहता है मुझे अब चले जाना है। तो वो वहाँ रुकना नहीं चाहता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं वाई शुड दैट बी, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। डेरी कहता है एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। वो कहता है क्या देख सकता हो, व्हाट दे थिंक, वो अब यहाँ अपने बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, उन लोगों के बारे में जो उसको देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो वो यहाँ बताता है कि वो जो है लोगों के सामने जाता है और लोगों के सामने
फेस नहीं कर सकता उनको जो वो उसके बारे में सोचते हैं। तो वो डैडी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचते हैं। तो डैडी कहता है यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक। कहता है क्योंकि मेरा फेस चला हुआ है। कहता है वो देखते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन बाद में क्या नोट करने लग जाते हैं, वो नोटिस करने लग जाते हैं मेरे फेस को जो कि जल चुका था। तो यहाँ हम देखते हैं मिस्टर लैम्ब ट्राइड and to stop him and said that there was no need to leave the garden just because of him. He also told him that he kept the gate open for people. It was only Derry who jumped the wall. And Derry gets angry and he tells that he hadn't come to steal anything from there. He also told that Mr. Lamb that the young boys do these kind of stuffs, but he did not think that Derry had come for that. So Mr. Lamb told him not to be afraid of him and asked him to stay there for a while so that they can sit and talk. Derry told him that he was not afraid of anyone, but people are afraid of him. He says that people look at him and he tells that they behaved in front of him like that when they see burnt face, and he doesn't like the gestures given by the people when they look at him. तो कहते हैं दैट्स बैड, देन यू सी माई फेस, सॉरी दैट्स अ टेरेबल थिंग। कहता है ये तो बहुत बुरा है, दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। तो कहता है ये सबसे बुरी चीज होती है जो मेरे सामने कभी आए। यू थिंक पुअर बॉय, और सब मुझे क्या समझते हैं, बेचारा, क्योंकि मेरे जले हुए चेहरे को देखकर उनके दिल में मेरे लिए पैथेटिक कहीं कोई कॉर्नर बन जाता है और वो मुझे पुअर बुलाते हैं, और जो मुझे पसंद नहीं आता। बट आई एम नॉट, कहता है मैं पुअर नहीं हूँ, मैं बेचारा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अंडरनेथ यू आर अफ्रेड एनीबडी वुड बी, आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। कहता है जब मैं अपने आप को देखता हूँ शीशे में तो मुझे पता चलता है कि मेरी स्किन कितनी खराब है, और वास्तव में लोग मुझसे डरते ही होंगे क्योंकि मैं भयावह दिखता हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि ही टेल्स that he is considered bad or ugly, while some even took pity on him and say that he is a poor boy. He added that they were fake. Actually, they all were afraid of his face. He even got scared of his own face when he looked it into the mirror. He also added that Mr. Lamb will also feel pity him, and in his heart he will also be scared of Derry. वो सोचता है कि वो भी उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो उससे डर नहीं रहे होंगे क्योंकि उसका फेस ऐसा ही है। डेरी कहता है यस, और वो रुक जाता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट इज अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, दे आर राइप फॉर इट। I make jelly, it is a good time of year, September. Look at them, orange and golden, that's magic fruit, I often say, but it is best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो यहाँ वो कहता है उससे कि अब यहाँ वो उसका ध्यान बटाना चाहता है। वो कहता है कि क्या करना है उसे जो है अपनी सीढ़ियाँ लानी है। मिस्टर लैम्ब सेड दैट ही वाजंट अफ्रेड ऑफ डेरी एंड डेरी वाज शॉक्ड टू हियर दैट। Then Mr. Lamb told him that he would bring a ladder and stick and pick fine and ripe crab apples as they made a good jelly. He also told him that in September they get ripe and become a magic fruit having orange and golden color. He also asked him to join him in doing so. So students, we will be learning till here. In next part, we will cover another part of the chapter. Take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next part.